Hello children, let us continue with the human health and diseases. We have discussed last time few diseases, malaria, then typhoid, pneumonia, common cold. Now let us continue with the amoebiasis. Amoebiasis, that is also known as amoebic dysentery. Causative agent is Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica, this is a protozoan. So earlier we discussed two bacterial diseases is one viral disease and one protozoan, that is the Plasmodium malaria. So this is again a protozoan disease, Entamoeba histolytica. Means of transmission is from feces of infected person to food or food products through vectors, house flies or mechanical carriers. Drinking water contaminated by fecal matter, they are the main source of infection. Target organ is large intestine. And क्योंकि इंटेस्टाइन है तो सिम्टम्स क्या होंगे? डाइजेशन के. दिस इंक्लूड्स कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, cramps, stool with excess mucus and blood clots. So here you see that the main source of infection is contaminated food or water. मुंह से ये हमारी infection आती है. Then it enters into the stomach and intestine. तो cyst के थ्रू आती है. cyst जो है that is a organism enclosed in a thick wall that is known as the cyst. तो ये अंदर intestine में cyst changes into the active form of the parasite in the intestine. It can live here causing mild symptoms or no symptoms. In some cases, parasite, it enters through the wall of the intestine, burrows through the walls of intestine, then it can enters into the lungs, into the liver, other tissues में भी enter कर सकता है. So by the blood it can infect other organs, liver, lungs and even the brain also. That is dangerous. Some of the parasites, कुछ जो है वो यहीं रहते हैं इंटेस्टाइन में, माइल्ड सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं और नहीं भी करते. कुछ दूसरे ऑर्गन्स में एंटर कर जाते हैं एंड कुछ जो है पैरासाइट दे पास आउट along with the undigested food and then they are the means of infection for the others. तो दूसरे होस्ट जब तक उसको नहीं मिल पाता, दे अगेन चेंज इनटू सिस्ट की फॉर्म में आते हैं और बाहर जाके फिर सिस्ट बन जाते हैं ताकि दे कैन टॉलरेट अनफेवरेबल कंडीशंस एंड then they remain in the form of cyst till they find another host. Next is Ascaris. So this is a disease of roundworm, helminths. Ascaris lumbricoides. Again it is by the consumption of contaminated water, vegetables, fruit, etc. Contamination takes place through feces of infected person which have the egg of the parasite. Target organ, same, intestine. Internal bleeding of the intestine, muscular pain, fever, anemia and blockage of intestinal passage. तो ये भी contaminated food से, ये contaminated food में. So here it is a roundworm, adult. एक जो मेल है, मेल slightly hooked होता है एक तरफ से और female that is almost straight and it causes abdominal pain. और कभी कभी जैसे ये बहुत सारे मल्टीप्लाई हो गए, पूरा देखो गुच्छा बन जाता है ये कीड़ों का, तो ये क्या होता है, दे कैन कॉज ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन आल्सो. तो पूरी इंटेस्टाइन को ब्लॉक भी कर देते हैं. देन नेक्स्ट इज एलिफेंटिएसिस और फिलेरिएसिस. कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज वुचरीरिया बेनक्रॉफ्टाई और वुचरीरिया मलियाई. फिलेरियल वॉर्म, फिलेरिएसिस भी हम इसलिए इसको कहते हैं फिलेरियल वॉर्म. एलिफेंटेसिस इसलिए कहते हैं कि इसमें जो लोअर लिम्स होते हैं वो बड़ी स्वोलन हो जाते हैं, एकदम
बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, तो लेग्स जो हैं दे लुक लाइक द एलिफेंट, इसलिए हम इसको एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं. सो ऑर्गन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज वुचरीरिया बेनक्रोफ्टाई. तो सभी के स्पेलिंग्स आपने अच्छे से याद कर दिया. मोस्टली बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, वुचरिया कर देते हैं, रीरिया. तो जैसे प्रोनाउंस करोगे वैसे ही आपने इसको लिखना है. तो मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन इज मॉस्किटो. Here it is female Culex. मलेरिया में हमने किया था एनाफिलिस मॉस्किटो फीमेल, और यहाँ पे फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो. लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स एंड जेनिटल ऑर्गन्स, इसके टारगेट ऑर्गन. एंड देन इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन्स. लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं वो एलिफेंट के लेग की तरह नजर आते हैं, इतना फूल जाते हैं. सो दैट इज वाई एलिफेंटिएसिस डिफॉर्मेशन ऑफ जेनिटल ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करती है. फिलेरियल वॉर्म. लाइफ साइकिल हमें ज़रूरत नहीं है इसमें, नहीं, इट्स नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक. हियर यू सी सिम्टम्स. लेग्स कितनी बड़ी बड़ी ये हो जाती हैं. सो दैट इज वाई इट इज नोन एज द एलिफेंटिएसिस. रिंगवॉर्म कॉजेटिव एजेंट इज इट्स अ फंगल. तो अभी हमने फंगल की फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट डिसीज कर रहे हैं. माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन. तो तीनों ही नाम अपनी जो मैंने आपको बताया कि टेबल की फॉर्म में लिखना है, तो तीनों ही लिखना है. तो कई बार जो है सभी जो है स्पीसीज पूछी जाती है, तो सभी आपने लिखनी है. Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton. So these three types of fungi, they cause ringworm. तो ऐसे नहीं है कि this is not caused by a worm, it is caused by a fungi. ठीक है. So ringworm इसका नाम जो है worm के कारण नहीं है. Means of transmission through the soil, using the towels, clothes, earths, pillows, and even combs of the infected persons. जब heat and moisture enhances the growth of organisms. Target organ is skin, nails, folds of the skin in ground area and toes. Symptoms: appearance of dry scaly lesions in the skin, nails and scalp. Lesions accompanied with intense itching. तो कई बार हम देखते हैं कि स्किन में किसी किसी एरिया में ड्राइनेस हो जाती है, वाइट पैच हो जाते हैं और वहाँ खारिश होनी शुरू हो जाती है. और कई बार नेल्स में ऐसा होता है, या कई बार सिर में हमारे बहुत ज़्यादा इचिंग खारिश होती है, डैंड्रफ से आगे बढ़ जाती है. तो रिंग वॉर्म जो है मतलब उसकी जो सिम्टम्स है ना, वो एक रिंग लाइक वो स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए हम उसको रिंग वॉर्म कहते हैं. तो यहाँ देखो स्किन पे किस तरह से ये फंगल इन्फेक्शन टोज में यहाँ पे है, और स्पेशली रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि मॉइस्चर से ये प्रमोट होती है ये. ठीक है. सो ये देखो रिंग की शेप में बन जाता है. एंड ये माइक्रोस्पोरम की फिगर है. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द रिंग वॉर्म. और ये माइक्रोस्पोरम फंजाई दैट कॉजेज इज रिंग वॉर्म. देन इन जनरल हम करेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर. तो सभी इन्फेक्शियस डिसीजेस के ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस कि वो मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन उनका फूड एंड वाटर है, या मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन उनका वेक्टर है, तो उस हिसाब से थोड़ा चेंजेस है. तो बेसिकली हम तीन सेम वे है इसका. पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, मेंटेनिंग अपनी हाइजीन एंड पब्लिक प्लेसेस पे पब्लिक हाइजीन मेंटेन करना, वो इन जनरल और इट इज़ द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ ऑल द इन्फेक्शियस डिसीजेज. तो ब्रॉडली हम तीन कैटेगरी में जैसे कर सकते हैं. फूड एंड वाटर बॉर्न डिसीजेज. तो फूड एंड वाटर बॉर्न डिसीजेज के प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे? पर्सनल हाइजीन तो सभी में आएगा. प्रॉपर पर्सनल हाइजीन मीन्स इंक्लूडिंग अवर बॉडी क्लीन, कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट सभी को अच्छे से हमने वॉश करना है, तभी हम उसको खाएंगे. देन प्रॉपर पब्लिक हाइजीन
means proper disposal of waste, cleaning toilets properly, sanitary habits, it's then disinfecting water reservoirs, pools, tanks. तो ये सब हमने ध्यान रखना है. तो कुछ डिसीजेज जैसे फूड एंड वाटर बॉर्न डिसीजेज हैं, टाइफाइड है, अमीबियासिस है, अस्कैरियासिस है, these can be prevented by these. Then airborne diseases है. एयरबॉर्न डिसीजेस की प्रिवेंटिव मेजर है, वी शुड अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन एंड वी शुड also avoid using the belongings of infected persons. Personal hygiene, of course, it is very important for all the types of diseases. is तो ये एयरबॉर्न क्योंकि उसकी स्नीजिंग से, उसकी कफिंग से ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, तो हमें थोड़ा अगर हम दूरी बना के रखते हैं, निमोनिया है, कॉमन कोल्ड है, तो एयरबॉर्न डिसीजेज से हम प्रिवेंटिव मेजर कर सकते हैं. वेक्टर बॉर्न डिसीजेस, इसका तो ये है कि सच डिसीजेस में क्योंकि जो किसी वेक्टर से लेके जाते हैं, चाहे वो हाउस फ्लाई है या मॉस्किटोज है, तो उसका तो बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर है कि हम उसको वेक्टर्स को एलिमिनेट करें, वेक्टर्स को खत्म करें. सो कंट्रोलिंग और एलिमिनेटिंग वेक्टर्स एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस, सो अवॉइडिंग स्टेगनेशन ऑफ वाटर एंड in and around residential areas, regular cleaning of household, cooler use of mosquito nets. तो mosquitoes को हम ब्रीडिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम पानी नहीं खड़े होने देते, कूलर्स का पानी रेगुलरली चेंज करते हैं, घर में हम मॉस्किटो नेट्स लगाते हैं या कुछ मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स लगाते हैं, तो इस तरह से हम इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं. अगर मॉस्किटो नहीं होगा या मॉस्किटो को मॉइस्चर चाहिए ब्रीडिंग प्लेस के लिए, तो वो ब्रीड नहीं करेगा, तो ये डिसीज नहीं होगा. इसका एक बायो कंट्रोल मेथड है, इंट्रोड्यूसिंग फिशेस लाइक गैम्बूजिया. ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है. गैम्बूजिया, दैट इज अ फिश, if it is introduced in the ponds, then it feed on mosquito larvae, then spraying of insecticide in ditches, drainage areas, that also help in killing the mosquitoes and mosquito larvae. वाटर मेश अगर हम डोर्स विंडोज में रखेंगे टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉस्किटोज. सो एडीज, क्यूलेक्स मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज, दे कॉज डिफरेंट डिसीजेज, मलेरियासिस, फिलेरियासिस, डेंगू, चिकनगुनिया, they are the different diseases which are vector borne. Now we can prevent the diseases through vaccines and immunization. Vaccines जो हैं हम एक mild form of ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस करते हैं दैट हेल्प टू डेवलप इम्यूनिटी. आगे हम इम्यूनिटी वाले टॉपिक में करेंगे एंड हेल्प टू प्रिवेंट फ्रॉम द डिसीजेज. तो इट इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स, पोलियो, जो कुछ डिसीजेज हमारे बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं. देन डिप्थीरिया, निमोनिया, टेटनस की भी वैक्सीन अवेलेबल है. बायोटेक्नोलॉजी इज वेरी हेल्पफुल फॉर डेवलपिंग वैक्सीन्स. तो डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन एंड वेरियस अदर ड्रग्स हैज enabled us to effectively treat infectious डिसीजेज. तो या तो ये ओरल फॉर्म में दी जाती हैं जैसे पोलियो वैक्सीन है, या इंजेक्शन की फॉर्म में दी जाती हैं जैसे मीजल्स है. तो वैक्सीन्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेज. सो दिस वाज अबाउट द डिसीजेज. नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस द इम्यूनिटी और द इम्यून सिस्टम. थैंक यू सो मच.